I started my journey in 2023. Civil services was not a childhood dream for me. It happened during the final year of my masters at IIT Delhi. I saw my batchmates preparing for the civil services. How should they start this preparation as beginners? Right, sir. Sir, I think first of all, they should research a lot about the exam rather than straight away diving into it. So I would say you can watch some topper talks, especially focus on the toppers who have a similar background as you. My personal suggestion would be to first begin with conceptual subjects like polity, economy, because the competition that we are competing with basically, so they are very good at these subjects. So these are the subjects that most of the serious aspirants, they prepare very sincerely. So I think initially directly AIP rely नहीं करना चाहिए. First you build a basic understanding of all the subjects. उसके बाद first reading से notes बनाने का it does not make any sense because you will generate another book. तो first reading से भी notes नहीं बनाने हैं. पहले 2-3 reading complete कर लो. उसके बाद आपको अगर लगता है कि book से revise करना is becoming lengthy for me, then you can go for note making. Especially in my first prelims, I had just cleared it 1 mark above the cutoff. This time I am at 100 plus. So I think that is a major blunder that I made कि इधर उधर भागना it is very disastrous. तो वो नहीं करना है. शुरू में थोड़ा सोच लो, take your time. उसके बाद sources decide करो, but then later stick to them. So we have Komal Mavi with us. She secured All India rank 314 this year. She is a chemistry expert, if I'm allowed to say that. She has done chemistry from DU, from IIT, and obviously is also an environmentalist. She has cracked this exam 2 times. First time she cracked and got into Indian Revenue Services, IRS. And now most likely she'll be joining the IAS. So very dedicated, very sincere. I had the privilege of mentoring her in the interview program. So thank you so much, Komal, for taking out your time and sharing your system with UPSC aspirants for 2027. Thank you for having me. Komal, just let us talk something about your journey. When did you decide to give this examination? And you can speak in both languages, English and Hindi, dono chalega. We'll keep it bilingual. So when did you decide to attempt for this examination? And from there till finally now that you might be getting IAS, how does it feel? And how do you see all of your preparation? इसके बारे में थोड़ा बताओ. Yes, sir. Sir, I think the feeling is yet to sink in. It feels almost like yesterday when I was actually planning for the civil services. And now I'm on the other side of it. So it feels really good. So, sir, I started my journey in 2023. Civil services was not a childhood dream for me. It happened during the final year of my masters at IIT Delhi. I saw my batchmates preparing for the civil services, and I became interested in the field. Earlier, I had decided to go for a PhD, so I was in a dilemma at that time. So what I did is I enrolled for PhD at IIT Delhi. I also completed my first semester of PhD. Simultaneously, I was researching about the civil services. And when I was sure about it, then I decided to resign. And in March to April 2023, I started my preparation. And in 2024, I gave my first attempt, and 2025 was my second attempt. Yes. Okay. So most of the aspirants and students who are listening to you, they're preparing this examination in 2027. Now, how would you, most of them are beginning this. So what would you suggest a beginner to start this preparation? How should they start this preparation as beginners? Right, sir. Sir, I think first of all, they should research a lot about the exam rather than straight away diving into it. So I would say you can watch some topper talks, especially focus on the toppers who have a similar background as you. So that would give you great insights as to how you can proceed further. Along with that, sir, first they should look at the syllabus and PYQs. It is very understandable that if you are not from the humanities background, it will be difficult for you to understand the syllabus or to take a proper understanding of the PYQs as well. So for that, what you can do is you can watch some analysis videos on YouTube free of cost of any coaching institute, wherein they have analyzed PYQs of both prelims and mains. So we can watch the analysis of about 5 years of PYQs, and then we can dive into the preparation of the exam. Right. So PYQs is how they should be beginning. And would you also suggest them to start with NCRTs or directly jump to the standard books? Sir, I did not read 6 to 12 NCRTs because I did not have the time for it. But definitely we can start with 11, 12 NCRTs. Because they give a good overview of the subject. Because I think directly jumping to the standard book may be a little difficult to comprehend for many of us, especially if we are from a technical background. So I started with NCRTs for polity, economy, geography. So I read only 11, 12 NCRTs. I did not refer to 6 to 12 NCRTs. Correct. So selective NCRTs and PYQ is how we should be beginning this. And then directly we jump to the standard books. Correct?
Would you also do you have an order of standard books, like starting polity first or probably geography first, something like that? Right. Sir, I think first, my personal suggestion would be to first begin with conceptual subjects like polity, economy, because the competition that we are competing with basically, so they are very good at these subjects. So these are the subjects that most of the serious aspirants they prepare very sincerely. So first, we should begin with polity and economy. Another reason for starting with these subjects is you will better understand current affairs if you have understood these subjects in the beginning. Now, regarding current affairs as well, we should not start reading newspaper from day one. That is my personal opinion. Why? Because it will take a lot of time. It will take around 3 to 4 hours, or even more than that. If you are not able to understand it properly, you will not be able to filter the news that is relevant for the exam. So, for that, what I did is I went to YouTube again and I watched daily news analysis of any institute that you find good, and you can continue with that for around 1 to 2 months. So gradually you will begin to have a grasp of the news that is relevant for the exam and news that is irrelevant. So later on, then we can begin the newspaper reading. So if we go subject wise, first I think we should focus on polity, economy. Then we can focus on modern history, geography. These are the four core subjects, and then come the ancillary subjects like ancient medieval art and culture, science and tech, environment, IR, and mapping. So first for core subjects, and then these ancillary subjects. Right. If I have to, if let's assume they are starting in April, and let's divide the preparation into 3 months, 3 months block. From April to July, as beginners, what would you suggest them to do? Which covers probably their static, optional, CA, answer writing, whatever important pillars you find you feel are relevant for this examination. So, April से लेके July के बीच में, what would you suggest them? Sir, I think initially they should focus on building the foundation rather than focusing on prelims specific or mains specific preparation. So the initial 3 4 months of the preparation can be to just build a foundation of all the basic subjects. So we can cover all the NCRTs and standard books for polity, economy, geography, modern history, and the other ancillary subjects that I told. Then later on, from August onwards, they can begin with the specific mains preparation and they can pick up their optional so that they can target mains ready by December. And if not December, it can be extended up till January. Then January onwards or February onwards, they can switch to prelims preparation. Okay, so also with respect to notes, I mean, since AI has also come into the picture now, and note making has been fragmented. How did you prepare notes, and at what stage of the preparation would you suggest them to start with note making also? Yes. Sir, I think AI definitely is a helpful tool, especially in note making and in cutting the manual labor for especially for UPSC aspirants. But sir, I am a very traditional type of person. I believe in doing things the traditional way. तो मैंने AI का use किया था, but it was at a very later stage of my preparation when I was mature enough to judge कि AI क्या सही बता रहा है और क्या ये गलत बता रहा है मुझे. So I think initially directly AI पे rely नहीं करना चाहिए. First you build a basic understanding of all the subjects. उसके बाद फर्स्ट रीडिंग से नोट्स बनाने का इट डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज यू विल जनरेट अनदर बुक. तो फर्स्ट रीडिंग से भी नोट्स नहीं बनाने हैं, पहले 2 3 रीडिंग कंप्लीट कर लो. उसके बाद आपको अगर लगता है कि बुक से रिवाइज करना इज बिकमिंग लेंदी फॉर मी, देन यू कैन गो फॉर नोट मेकिंग. सो दिस इज फॉर प्रीलिम स्पेसिफिक. मेंस के लिए तो नोट मेकिंग इसेंशियली हो जाती है बिकॉज इट इज सेट फॉर मेंस की जैसे आपके नोट्स होते हैं वैसे ही आपके आंसर्स होते हैं अल्टीमेटली. सो आई थिंक मेंस के लिए भी सेम थिंग अप्लाइज कि आप पहले 2 रीडिंग ले लो अपने बेसिक मटेरियल फ्रॉम वेयर एवर यू आर रीडिंग इट, और उसके बाद फिर आप टॉपिक वाइज 1 पेजर नोट्स बना सकते हैं सिलेबस के पॉइंटर वाइज. सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव टू सजेस्ट अबाउट नोट मेकिंग. 1 pager, would you recommend them to start with 1 pager की ये नोट को फाइन ट्यून करते करते 1 pager पे आ जाएं? Because I think as beginners 1 pagers would be very difficult for them to incorporate. आपको क्या लगता है? राइट सर, डेफिनेटली इनिशियली जो हम नोट्स बनाएंगे वो बहुत लेंदी बनते हैं. उसमें हम काफी चीजें, क्योंकि हमें लगता है सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो यूज हो ही जाएगा, तो हम बहुत सारी चीजें उसमें लिख लेते हैं. सो ऑन द फर्स्ट गो इट सेल्फ वन पेजर नोट्स नहीं बनते हैं, वो रिफाइन हो के 1 पेजर हो जाते हैं. तो इनिशियली आप जैसे भी नोट्स बना रहे हैं आप वैसे बनाइए. उसके बाद आप जब फिर से उन नोट्स के थ्रू जब जाएंगे, आप फिर से पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे, आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां से आपको समझ आने लगेगा कि क्या आपने इररिलेवेंट चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ से आप क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उठा के उनको अपने 1 पेजर्स में डाल सकते हैं. With respect to optional also, I think a lot of students find difficulty in selecting optionals. ऑप्शनल सिलेक्शन का डू यू हैव एनी पैरामीटर कि ग्रेजुएशन वाला ही करना चाहिए या जो हाईएस्ट स्कोरिंग है वो पकड़ लो? वुड यू हैव सम और सजेशन लाइक दैट कि इनको हाउ शुड दे सिलेक्ट देयर ऑप्शनल, और कब तक फाइनलाइज हो जाना चाहिए?
और अप्रैल से जुलाई के पीरियड में इज एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल दैट दे कैन डू? Sir, I think it varies from person to person. Jesse, I was very sure that I will take my graduation subject only as my optional. One, because I had spent 5 years with chemistry in graduation and post graduation. Two, because chemistry was available as an option in civil services. There are many graduation subjects which are not available. So that is a different case altogether. And third is because I knew that I can score well in chemistry. So these were the three reasons why I went for chemistry. But if you do not want to go with the subject of your graduation, then I think I have 3 to 4 criteria for selecting optional. I think first criteria should be guidance availability. क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिक ऑप्शनल्स होते हैं विच पीपल फाइंड इंटरेस्टिंग बट उनकी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है. उसकी वजह से क्या होता है, टू स्कोर इन दैट सब्जेक्ट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सिलेबस कंप्लीशन इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंज. तो फर्स्ट वुड बी गाइडेंस अवेलेबिलिटी. सेकंड वुड बी अगेन स्कोर क्या चल रहा है उसमें, कैसे मार्क्स आ रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट, एवरी ऑप्शनल इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, but some optionals are more scoring than others. That's what I would say. तो पहले scores देख लें, आप toppers का check कर सकते हैं how much they are scoring in these subjects. Third would be कि duration कितनी है, because कुछ कुछ ऑप्शनल्स होते हैं जो दे आर हाईली रिवॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, बट बिकॉज उनको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है, सो इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं. एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया शुड बी इंटरेस्ट एज वेल, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि आपकी जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है एंड यू मे हैव टू स्पेंड अ फ्यू ईयर्स विद दैट ऑप्शनल. तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप सजा की तरह उसको काट रहे होगे. सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. आई थिंक इंटरेस्ट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. So I think that's all about optional. Okay, so good part about Komal is that she was able to clear this exam both the times, first attempt में भी second attempt में. तो कुछ तो आप सही कर रहे हो, कुछ तो आपने इस एग्जामिनेशन को समझ लिया है मच बेटर देन अदर्स जो कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले रहे हैं टू क्लियर इट. तो वो आपकी चेकलिस्ट कौन सी है? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड परफेक्टली अबाउट दिस एग्जामिनेशन कि ये तो एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है? Sir, I think the non-negotiables are the things that I stated in the beginning itself. Key PYQs, syllabus, to keep your resources very limited. जैसे मैंने बोला कि मुझे टाइम नहीं था कि मैं 6 to 12 की एनसीईआरटीज पढूं, सो आई स्टक टू 11th एंड 12th एनसीईआरटीज. सो द थिंग इज कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए. आपको 10 जगह से करने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह से करो, उसको ट्रस्ट करो और फिर उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. आई थिंक दैट इज व्हाट हेल्प्स मोर. इवन इन मेंस ऑल्सो यू हैव टू मेक रियली शॉर्ट नोट्स. आपको उन नोट्स को मल्टीपल जगह अप्लाई करना है. आपको हर आंसर के लिए नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. आपके पास जो ऑलरेडी मटेरियल है, एग्जिस्टिंग मटेरियल है, हाउ यू कैन यूज दैट बेटर, हाउ कैन यूज इट एट मल्टीपल प्लेसेस, दैट इज व्हाट मैटर्स मोर फॉर द एग्जाम. Right. So PYQ, syllabus, limited sources, and in the first 3 months we can go with the foundation books. है ना? Big four कहोगे आप उसको, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमी, है ना? बिग फोर खत्म कर देते हैं. ठीक है. एंड ऑप्शनल वी हैव टू डिसाइड बाय दिस टाइम. अगर आप सेल्फ स्टडी के रूट से जा रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी करोगे ऑप्शनल का, या फिर आप क्लासेस के बाद पढ़ोगे. राइट? ओके. तो देन विद रिस्पेक्ट टू जुलाई एंड अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर का जो 3 मंथ्स रहेगा, व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? उस पीरियड में क्या सजेस्ट करोगे आप? सर आई थिंक जुलाई तक आप अपना ऑप्शनल फाइनलाइज कर लें, बिकॉज आप उस टाइम पे जीएस भी पढ़ रहे होगे. सो एज आई टोल्ड यू, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है. सो बाय देन यूल अंडरस्टैंड कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रहा है ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोसाइटी ज्यादा अच्छा लगता है तो आप सोशियोलॉजी देख सकते हो. सो लाइक दैट यू कैन डिसाइड योर ऑप्शनल बाय जुलाई. और फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स डेडिकेटेड मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए. वी कैन कवर वन जीएस सब्जेक्ट एंड आर ऑप्शनल लाइक बोथ एट ऑन वन डे, हाफ हाफ टाइम डिवाइड करके दोनों में इस तरीके से कवर कर सकते हैं. और वी कैन टारगेट कि 3-4 मंथ्स में हमारा कवर हो जाए सिलेबस. उसके बाद वी कैन फोकस ऑन रिविजन, नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग. सो आई थिंक दैट्स व्हाट शुड बी द आइडियल टाइमलाइन. नोट्स आपके स्टार्टिंग से बन रहे हैं, राइट? आप उसको मल्टीपल टाइम आइटरेट करते करते रिवाइज कर रहे हो, या बेटर कर रहे हो? राइट सर, आई मेंट कि जो फाइन ट्यूनिंग जो बाद में होती है नोट्स की, दैट्स व्हाट आई मेंट कि लेटर फेज ऑफ प्रिपरेशन में वो करना है. ओके. डेडिकेटेड मेंस प्रिपरेशन से क्या मतलब है कि फुल टाइम लेट्स स्टार्ट मेंस नाउ, और उसमें आप क्या कहोगे? बिकॉज हाउ डू यू सी मेंस एज अ सब पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इवॉल्विंग ऑल्सो? क्योंकि आप देखोगे अब बहुत ज्यादा टॉपिक्स में करंट अफेयर्स का भी रोल है, मेन स्पेशली GS2 GS3 में. वैल्यू एडिशन, स्पेशली किस अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन पे हमारे आंसर्स जा रहे हैं, थीम डिमांड अप्रोच को ठीक से समझना, या डिमांड आर्ग्यूमेंट्स एग्जांपल्स, डायमेंशंस आर्ग्यूमेंट्स एग्जांपल्स वाली अप्रोच है. Did you have any specific approach with respect to say आंसर राइटिंग या मेंस को समझने की कोई अप्रोच आपने लगाई हो?
Yes, sir. Sir, mains के लिए the most important approach was कि I looked at the PYQs again and I looked at the syllabus. Because बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें सिलेबस देख के समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली exactly क्या पूछने वाले हैं, या फिर इनफैक्ट अगर हम किसी भी एक जीएस पेपर का सिलेबस देखेंगे देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स में देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कवरिंग वेरियस सब पॉइंटर्स ऑफ मेन्स। कुछ पॉइंटर्स ऐसे होंगे जिनमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप ब्रेथ भी कवर कर लेंगे सो दैट वर्क्स। बट कुछ टॉपिक्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वील ऑब्जर्व कि उनमें जो डायमेंशंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जो पूछी जा रही हैं। सो दैट मीन्स उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हमारे नोट्स जो है वो डेप्थ में होने चाहिए। तो उन पे हमारी जो वैल्यू एडिशन है, जो एनरिचमेंट वाला पार्ट है, उन पे ज्यादा फोकस करना है। सो दैट्स व्हाट माय स्ट्रेटजी वाज कि मेंस के सिलेबस में जितने भी पॉइंटर्स हैं आई विल नॉट फोकस इक्वली ऑन ऑल ऑफ देम। सम पॉइंटर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, अदर्स आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। कवर सारा करना है लेकिन कुछ चीजें बेसिक कवर करनी है, कुछ चीजें ज्यादा डेप्थ में जाके करनी है। डायमेंशंस के लिए पीवाईक्यूज आई थिंक आर द बेस्ट सोर्स। बहुत सारी डायमेंशंस तो हमें वहीं से पता चल जाती हैं। बाकी जब हम एक बार रीड करने लग जाते हैं ना तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पॉपअप करते हैं बाय रीडिंग अ पर्टिकुलर पीवाईक्यू। तो उससे भी आपको समझ आएगा कि और फर्दर क्या डायमेंशंस पूछी जा सकती हैं उस टॉपिक से। सो आई थिंक दैट इज हाउ वी कैन कवर द मेन स्पेसिफिक नोट्स। PYQs and micro themes in non-negotiable है with respect to both the stages. इस एग्जाम में ये non-negotiable है, correct. Yes. With respect to GS paper wise, अगर आप GS 1 के बारे में if you want to tell something about the students कि how do they write example answers of GS 1 और आपकी क्या understanding है with respect to this paper? सर आई थिंक GS1 के लिए मोस्टली आई रिलाइड ऑन माई प्रीलिम्स नोट्स, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी होता है। सोसाइटी इज मेंस स्पेसिफिक बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स में। बट द थिंग इज कि प्रीलिम्स नॉलेज को यूज करके हम डायरेक्टली मेंस के आंसर्स नहीं लिख पाते हैं। सो उसके लिए व्हाट आई डिड, बिकॉज आई हैड टू कट शॉर्ट ऑन माई टाइम, आई डिड नॉट रेफर टू अ डेडिकेटेड मटेरियल फॉर GS1। मैंने अपने प्रीलिम्स के नोट्स उठाए, उनको मैंने इस तरीके से रिवाइज किया दैट आई फोकस ऑन एक्टिव रिकॉल। तो उसमें मुझे जो सारा कंटेंट है वो मेन स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना है, डायग्राम्स एंड एवरीथिंग फॉर ज्योग्राफी। उसके बाद व्हाट आई डिड इज आई पिक्ड अप अ टेस्ट सीरीज, ईयर लॉन्ग जो टेस्ट सीरीज होती है जो फ्रीली मिल जाती है मार्केट में। वहां से मैंने GS1 के क्वेश्चंस निकाले, तो वहां से थीम्स बन गई, उन्होंने मेन स्पेसिफिक मॉडल आंसर्स भी दे रखे हैं। सो वॉट एवर एनरिचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मेन्स अपार्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स मटेरियल, वो मेरा वहां से कवर हो गया टेस्ट सीरीज से। इसके अलावा पीवाईक्यूज जो है GS1 के, उनके मैंने सोल्यूशंस निकालिए चैट जीपीटी से, थोड़ा कोचिंग के आंसर्स से। तो वहां से मैंने करके जो भी मुझे अच्छा अच्छा वैल्यू एडिशन मिला GS1 के लिए वो मैंने वहां से किया। सोसाइटी के लिए सर आई ऑल्सो रेफर टू एक्स फैक्टर नोट्स आपके जो होते हैं, बट आई गॉट देम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। तो मैंने वो रेफर किया, मैंने एक दो कोचिंग का और मटेरियल देखा। एक मृदुल शिवहरे सर हैं, टॉपर रहे हैं वो आई थिंक 2022 में। तो उनके मैंने नोट्स देखे, हिज नोट्स आर रियली गुड। तो सोसाइटी को मैंने ऐसे दो तीन जगह से करके फिर मैंने अपने नोट्स बनाए। वाई आई फोकस्ड मोर ऑन सोसाइटी इज की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है GS1 में। तो अगर आपको अपने आंसर्स को डिफरेंशिएट करना है, अगर आपको मार्क्स थोड़े बढ़ाने हैं, तो आई थिंक सोसाइटी इज द वे टू गो फॉर GS1। जितना ज्यादा आप उस पर इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड करता है सोसाइटी। सो दैट्स वाई आई फोकस मोर ऑन सोसाइटी एंड बाकी सब मैंने प्रीलिम स्पेसिफिक कवर किया था। राइट एंड GS1 में इस बार आई थिंक मार्क्स भी इंप्रूव हुए हैं, बहुत टाइम बाद स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100 प्लस, जो कि बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे. Coming to GS2 and GS3, we see a lot of interlinkages of current affairs in this. और आई थिंक वैल्यू एडिशन की भी जो डिमांड्स हैं वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम GS1. हाउ डू यू सी बोथ पेपर्स? GS3 को हटा दो, पहले GS2 पे बात करते हैं स्पेसिफिकली. हाउ डू यू सी GS2 पे आप क्या बताओगे बच्चों को? सर आई थिंक इट्स ट्रू, GS2 और GS3 दोनों ऐसे पेपर्स हैं जो बहुत ज्यादा डायनेमिक होते हैं। तो करंट अफेयर्स का रोल ऑल्दो इट इज थ्रू आउट द GS पेपर्स, बट इन दोनों पेपर्स में थोड़ा ज्यादा होता है। बिकॉज इनके आंसर्स में अगर आप करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा दे देते हो, सो इट सेंड्स अ गुड इंप्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बेसिक नोट्स तो बनाने ही है इन दोनों के लिए भी। करंट जो होगा वो स्टैटिक में ऐड हो जाएगा। जैसे IR के लिए भी जो ओवरऑल रिलेशंस होंगे बिटवीन एनी टू कंट्रीज या कोई भी ब्लॉक है, जो थीम रहती है वो सेम रहेगी ओवर द इयर्स, वो एकदम से चेंज नहीं होती। तो आप अपने स्टैटिक नोट्स बनाओ, उसके बाद आप करंट अफेयर्स से उसको सप्लीमेंट कर सकते हो। सो आई थिंक डेफिनेटली GS2 GS3 में करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंस। या ओके, सो GS3 में क्या हो रहा है? GS3 में व्हाई डू यू थिंक स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्रॉस 100 प्लस? आपका क्या असेसमेंट रहा है इस पेपर में? व्हाट आर वी कलेक्टिवली डूइंग रॉन्ग इन दिस पेपर? यस सर, आई थिंक देर आर सर्टेन आउटलायर्स जिनके आ रहे हैं 100 प्लस, बट यस एवरेज स्कोर जो है वो 80 to 90 चल रहा है अभी GS3 के अंदर। सर व्हाट आई फील इज कि हम बहुत ज्यादा जनरलिस्ट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि बिकॉज ऐसे मिथ है कि ये जनरलिस्ट एग्जाम है तो आपको बहुत ऐसे स्पेसिफिक आंसर्स या बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना है। बट आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट UPSC इज रिवॉर्डिंग इन GS3। आई टॉक टू सर्टेन टॉपर्स 2024 के भी
who had scored really well in GS3 and I came to know कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिंगो यूज कर रहे हैं. बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. एक तो इस वजह से भी GS3 से लोगों को डर लगता है. इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं इस पेपर में, फ्रॉम इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट. इतना डाइवर्स पेपर है तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है कवर करना. उसके ऊपर से स्पेसिफिक हमें लिंगो यूज करनी है. बेसिकली जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, साइंस एंड टेक के अलग कीवर्ड्स होते हैं, इकोनॉमी के अलग होते हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर मिसिंग. हम बहुत ज्यादा जनरल टाइप के आंसर्स लिख के आ रहे हैं. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. इस वजह से मार्क्स नहीं आ रहे हैं. सो थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा GS3 के लिए टू इम्प्रूव मार्क्स. करेक्ट. तो जुलाई से अक्टूबर के फेज में अगर हम फिर आते हैं GS4 पे, अभी आते हैं वापस चले जाते हैं फॉर जुलाई टू अक्टूबर के फेज में, तो आपने कहा था फुल मेंस मोड में आ जाना है. और क्या करना चाहिए अक्टूबर में अपार्ट फ्रॉम फुल मेंस मोड? क्या थोड़ा बहुत हमें प्रीलिम्स का भी देखना चाहिए या अभी मेंस में ही रहना है कम्प्लीटली? सर मेरा तो नहीं था कि मैं अभी प्रीलिम्स देखूं, बिकॉज प्रीलिम्स तो बहुत दूर है अभी. अक्टूबर, लाइक आई थिंक इट इज अराउंड 8 months, Yeah. 7 to 8 months. So I think it's a very long period to look at prelims or worry about prelims at this point. So as I said in the beginning, जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो हम उस टाइम पे PYQs देख रहे होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमें प्रीलिम्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी तक प्रिपरेशन में. हमने थोड़ा थोड़ा कवर किया है. बट आई थिंक इन दिस एग्जाम एट एवरी स्टेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पीक एट द राइट टाइम. हमारी जो पीक परफॉर्मेंस है वो एकदम ऑप्टिमम टाइम पे आनी चाहिए. तो अगर आप इतनी जल्दी प्रीलिम्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, यू विल गेट एग्जॉस्टेड बाय द डे प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा. एंड आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिप हो रही होगी उस टाइम पे. जैसे हम केमिस्ट्री में भी ऑप्टिमम पीएच और ये सारी ऑप्टिमम चीजें बहुत ज्यादा बढ़ते हैं. सो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर. आप 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट करो, और ताकि आपकी जो पीक परफॉर्मेंस है वो एग्जाम डे पे आनी चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद. सो आई थिंक इट्स बेटर टू फोकस ऑन मेंस एट दिस टाइम. प्रीलिम्स बाद में हो जाएगा. मेंस में भी आफ्टर नोट मेकिंग इज डन इन जुलाई से अक्टूबर के पीरियड में शुड वी गो टू मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि इसमें भी देख लेते हैं कि करंट अफेयर के आंसर राइटिंग कैसे करने हैं, स्टैटिक के कैसे करने हैं, ऑप्शनल के कैसे करने हैं, या फिर आप कहोगे कि नहीं आंसर राइटिंग को भी हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, अभी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी या नोट्स पे फोकस करो? सर आई थिंक जो इनिशियल फेज है फ्रॉम अगस्त टू सितंबर अक्टूबर, उस टाइम पे बेसिक्स पे फोकस करना है. मेंस की फाउंडेशन बिल्ड करनी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, अपने नोट्स बना लो. उसके बाद आंसर राइटिंग, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन दिस फैक्ट कि डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए. डे 1 से हमें कंटेंट ही नहीं आता है. सो व्हाट्स द पॉइंट? आप कुछ भी अपनी तरफ से पॉइंट्स बना के मनगढ़ंत कहानियां लिखोगे, सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो इट्स बेटर कि आप पहले पेपर्स को समझ लो. बिकॉज वन थिंग इज कि आप मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखना चाहते हो, तो मल्टी डायमेंशनलिटी कैसे आती है आंसर्स में? जब आपने सारे पेपर्स एक बार पढ़ लिए हैं, GS1 2 3 4, सो यू बेटर अंडरस्टैंड कि एक टॉपिक को आप अलग अलग डायमेंशन से कैसे सोच सकते हो. तो उसके लिए पहले पढ़ना जरूरी है. आंसर राइटिंग उसके बाद आप कर सकते हैं. करेक्ट. अब जब अक्टूबर से दिसंबर का फेज आता है, वुड यू सजेस्ट देम टू स्टार्ट एथिक्स और एसे इस टाइम पे, कि आपको लगता है वो पहले से करना चाहिए? सर आई थिंक इस टाइम पे करना चाहिए, बिकॉज एथिक्स के लिए GS1 2 3 की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज वहां पे एग्जाम्पल्स जो आप यूज करोगे, एनेक्डोट्स जो आप यूज करोगे, इवन इन एसे ऑल्सो, वो GS1 2 3 की नॉलेज बहुत काम आती है, स्पेशली GS1 and 2. तो पहले GS1 2 3 पे फोकस करना चाहिए अलॉन्ग विद द ऑप्शनल. उसके बाद एथिक्स एंड एसे कैन बी डन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स. एंड वो दीज पेपर्स आर एक्चुअली बहुत कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं. ये लाइक इट्स नॉट कि आप कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड अलॉट करोगे फॉर एथिक्स एंड एसे और उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी. ये थ्रू आउट द ईयर चलती है इनकी प्रिपरेशन. तो जैसे आपने अक्टूबर से भी अगर स्टार्ट किया है, सो अक्टूबर से लेके जब तक आप एग्जाम लिखोगे तब तक आपकी एथिक्स और एसे की प्रिपरेशन चलेगी. सो आई थिंक दैट्स हाउ वी शुड गो अबाउट इट. ओके, गोइंग डीप इनटू एथिक्स और एसे, उससे पहले देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ टॉपर जो कहते हैं कि एथिक्स एसे इंटरव्यू ये ही और ऑप्शनल, ये 1000 नंबर है और आप ज्यादा फोकस इस पे करिए, GS पेपर्स तो आप समहाउ कर लेंगे. या आप दूसरे कैटेगरी में जो कहते हो नहीं ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, सबको बराबर फोकस करो, या आप किसी कैटेगरी में नहीं हो? सर नहीं, इनमें से किसी में नहीं हूँ. वही जो मिडिल पाथ होती है, मैं उस कैटेगरी में हूँ. आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप GS1 2 3 में एटलीस्ट एवरेज एंड अबव एवरेज स्कोर कर रहे हैं. अगर आप ऐसे एथिक्स, ऑप्शनल, इंटरव्यू, इनमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, बट यू आर परफॉर्मिंग बिलो एवरेज इन फर्स्ट 3 पेपर्स, सो इट इवन्स आउट योर स्कोर. जो आपका कॉम्पिटिटिव एज था वो खत्म हो गया. सो दैट्स नॉट हाउ यू शुड गो अबाउट इट. पहले आपको हर सब्जेक्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एथिक्स, ऐसे ऑप्शनल, हर एक सब्जेक्ट में आपको एक एवरेज स्कोर लाना है. ट्रस्ट मी, वो एवरेज स्कोर लाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है. सो बाय एवरेज आई मीन कि आपका GS प्लस एसे जो 4 पेपर्स हैं अलॉन्ग विद एसे, उसमें 500+, दैट इज एन एवरेज स्कोर. इतना आपको टारगेट करना है. ऑप्शनल में 260+, दैट इज एन एवरेज स्कोर. इतना आप पहले टारगेट करो. यानी कि हर पेपर को थोड़ा बेसिक कवरेज
मीडियम टू बेसिक जो होती है वो वाली कवरेज आप कर लो। उसके बाद यस वी शुड फोकस मोर ऑन एथिक्स एसे एंड ऑप्शनल, क्योंकि जीएस 1 2 3 में आप जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो नहीं ला पाओगे आंसर्स में, एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपका उसमें से कुछ एक ऑप्शनल है अगर, तो आपका कुछ आंसर्स अलग स्टैंड आउट कर सकता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सबके आंसर्स। तो देन यू कैन फोकस मोर ऑन दीज सब्जेक्ट्स। करेक्ट। और एथिक्स और एसए में अब थोड़ा अगर आप डीप डाइव करके बताओ कि व्हाट हैज चेंज्ड, इतने नंबर आ कैसे रहे हैं, अगर आते हैं 130 140 150 भी आ रहे हैं एसए में, तो व्हाट हैज चेंज इन दीज पेपर्स, और क्या ये थोड़ा फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड के लोगों के लिए ज्यादा एडवांटेजेस है, या फिर नहीं साइंस बैकग्राउंड वाले भी इसमें ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं? सर आई बिलीव दिस एग्जाम इज अ ग्रेट लेवलर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड आप हर सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज योर वीक स्पॉट, देन यू हैव टू वर्क मोर ऑन इट, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। अगर आपको लगता है इफ यू आर स्ट्रगलिंग मोर इन फिलोसफिकल एसेज, इफ यू आर स्ट्रगलिंग मोर इन एथिक्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, सो यू हैव टू वर्क मोर ऑन इट। सर आई थिंक फिलोसफिकल एसेज के अंदर भी द टॉपिक इज फिलोसफिकल, पर हमें वहां पे फिलोसफिकल बातें नहीं करनी है, हमें उस एब्स्ट्रैक्ट चीज को बहुत कॉन्क्रीट फॉर्म में लिखना है, ताकि ऐसे हवा में आपकी बातें ना लगे। सो आई थिंक दैट इज अ स्किल दैट मोस्ट ऑफ अस आर लैकिंग। मेरा भी ऐसे कभी 120 प्लस स्कोर तो नहीं हुआ है ऐसे में, सो आई स्टिल हैव टू फिगर आउट हाउ पीपल आर स्कोरिंग 150 प्लस, बट आई डेफिनेटली इम्प्रूव माई स्कोर। लास्ट ईयर इट वॉज 99, इस टाइम 118 आया है मेरा। तो 18 वेरी गुड स्कोर, विच इज अ वेरी यस गुड स्कोर। यस। सो आई थिंक वही चेंज किया है मैंने कि बहुत ज्यादा इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एक तो फर्स्ट ऐसे एग्जाम हॉल में जाके लिखा था, विच इज अ मेजर ब्लंडर। ऐसा नहीं करना है, आप पहले कुछ वीडियोस देखो, एनालिसिस देखो, टॉपर एसेस पढ़ो और खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही जाना है, लाइटली नहीं लेना है इस एग्जाम को। सेकेंड थिंग इज मेरा आंसर बहुत ही ऐसे मोनोटनस, बेसिकली ऐसे जो था इट वॉज वेरी मोनोटनस। फिलोसफिकल ऐसे में मैं फिलोसफिकल ही बातें कर रही थी। सो आई थिंक दैट डज नॉट वर्क। आपको प्रैक्टिकलिटी वहां पे दिखानी बहुत जरूरी है। आप फिलोसफर के लिए थोड़ी ना एग्जाम दे रहे हो, आपको कोई पीएचडी थोड़ी करनी है फिलोसफी के अंदर। आपको ये दिखाना है कि हमें फिलोसफिकल बातें भी रियल ग्राउंड में कैसे इंप्लीमेंट करनी है, इनका क्या एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में। दैट इज वॉट आई थिंक यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम अस, एंड दिस इज वॉट आई चेंज दिस टाइम, एंड आई ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट जंप इन माई मार्क्स। करेक्ट। अक्टूबर से दिसंबर की फेज में ऐसे एथिक्स के अलावा आंसर राइटिंग हो गई, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का ये सही टाइम है, या मार्केट से लेने का वटेवर? आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए इस फेज में? सर आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज, बट क्या होता है कि सम पीपल हैव टाइम कंस्ट्रेंट, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी इट्स अ डिसेंट इनफ टाइम टू ज्वाइन। बट इफ यू हैव टाइम डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन। एंड रिगार्डिंग की मार्केट से ले या फिर ज्वाइन कर लें, आई वुड सजेस्ट कि ज्वाइन कर लो। आप कोचिंग से पैसा बचा लो, आप फाउंडेशन से पैसा बचा लो, हर चीज में बचा लो, बट आई वुड से कि मेंस की टेस्ट सीरीज डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स के जो टेस्ट होते हैं आप वो मार्केट से उठा के आपको क्या ही करना है, आप आंसर की से मैच करोगे, आपको समझ आ जाएगा आपने क्या गलत किया। बट मेंस में हमें खुद से इवेल्युएशन नहीं आ पाती है इतने अच्छे से, बिकॉज वी आर ऑल्सो बिगिनर्स। तो इट्स बेटर कि हम अपने आंसर्स को एक्सपर्ट से इवेल्युएट करा रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं और फिर बेटर इंप्रूव कर रहे हैं अपने आंसर्स को। सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज इस टाइम पे ले लेना इज द राइट चॉइस टू मेक। राइट। तो अक्टूबर से दिसंबर तक के पीरियड में इज एनीथिंग वी हैव मिस्ड, आप जो ऐड करना चाहोगे ओवरऑल अब तक, कि हम आगे बढ़े? सर आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड। ठीक है। तो जनवरी से मार्च का पीरियड, नाउ वी वेरी क्लोजर टू द एग्जामिनेशन, जनवरी 27 से मार्च 27 तक, व्हाट वुड यू रिकमेंड दी स्टूडेंट्स टू डू? स्पेशली अब प्रीलिम्स का फोमो बहुत हो रहा है, बिकॉज सी सैट वी सैट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो आप कैसे बताओगे? सर आई थिंक सी सैट तो जनवरी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग सम क्लासेस या फिर आप कहीं से भी खुद से भी पढ़ रहे हो, सो इनिशियली 1 और 2 मंथ तो आपको सिलेबस कवर करने में लगेगा, और उसके बाद एटलीस्ट 3 मंथ्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है सी सैट के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। तो सी सैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम जैन इट सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका बहुत ज्यादा ऐसे क्लियर नहीं है प्रीलिम्स का, फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल जो क्लियर नहीं कर पाए हैं इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, तो उनको हो सकता है बहुत फियर हो जाता है, तो वो जैन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऐसा कुछ फियर नहीं है, सो यू कैन डेडिकेट जैन ऑल्सो फॉर मेन्स आंसर राइटिंग, अपना ऑप्शनल का रिविजन करना, थोड़े अपने नोट्स को बेटर कर लेना, एंड देन फ्रॉम फेब ऑनवर्ड्स यू कैन स्विच टू प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन। उसमें इनिशियली डायरेक्टली आप स्विच नहीं कर पाओगे, तो आप क्या कर सकते हो कि आप हाफ डे मेन्स पढ़ सकते हो और हाफ डे आप प्रीलिम्स पढ़ सकते हो, जिसमें आप अपने करंट अफेयर्स उठा सकते हो, जीएस उठा सकते हो, और सी सैट जो होगा वो रेगुलरली चलेगा ऑन एन एवरीडे बेसिस फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। करेक्ट। अब मार्च से मई तक फुल ऑन प्रीलिम्स, यस व्हाट वुड योर स्ट्रेटेजी बी? जैसे अभी भी अगर कोई 26 का दे रहा होगा, लास्ट 60 70 डेज हैं, सो व्हाट वुड यू रिकमेंड, क्या करना चाहिए इस टाइम सबसे ज्यादा?
आई थिंक इस टाइम पे लास्ट 2 मंथ्स में मेक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर कि आप एवरी डे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज टेस्ट सीरीज लगा लगा के जो हमारा माइंडसेट होता है इट बिकम्स हैबिचुअल टू टेस्ट सीरीज की लैंग्वेज, एंड यूपीएससी लैंग्वेज इज एक्चुअली अ लिटिल डिफरेंट. तो उससे थोड़ा फेमिलियर होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर लुकिंग एट द पीवाईक्यूज ऑन एन एवरीडे बेसिस. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज फॉर द लास्ट 2 मंथ्स I would make sure कि जो फर्स्ट 1 hour है of my day that would go for PYQs only. I would sit at my bench. I would attempt 25 questions of any particular year, and I would attempt it like a mock test. So even if I knew the answer, I would attempt it proper OMR में bubbling करना. Everything would be similar to a mock test. उसके बाद मैं उनको analyze करती थी. I would match my answers from the official answer key और फिर proper options को study करके अपने notes बना लेती थी. So that's what can be done. इसके अलावा अब कोई नए सोर्सेज रेफर करने की जरूरत नहीं है. वॉट एवर यू हैव स्टडी टिल नाउ, फोकस ऑन रिविजन. ऑफकोर्स करंट अफेयर्स के लिए अभी भी यू विल हैव टू कीप ऑन रीडिंग न्यू मटेरियल, सो दैट इज वेरी ऑब्वियस. बट उसके अलावा स्टैटिक के लिए डोंट रन बिहाइंड रैंडम सोर्सेज. वन थिंग सर आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि क्या करते हैं लोग इस टाइम पे अपना जो पहले से जो मटेरियल है विच दे मे हैव रिवाइज्ड अप टू 10 टाइम्स या जितने भी बार उन्होंने रिवाइज किया है उसको वो छोड़ देंगे और वो कुछ ऐसा नया रिविजन मटेरियल उठा लेते हैं मार्केट से. बिकॉज इस टाइम पे इट विल बी इट इज द टाइम जब हर मार्केट हर कोचिंग अपना रिवीजन का अलग ही मटेरियल निकाल के लेके आएगी. सो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विच. आपका माइंडसेट ऑलरेडी अलाइन हो चुका है अपने नोट से. प्लीज डू नॉट अबैंडन देम किसी भी एक नए मटेरियल के लिए. ऐसे फोमो में नहीं जीना है कि यार उसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ये नहीं करना है. जहां से आपने अब तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करो. उसी को अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स को एनालाइज करते रहो, इंप्रूवमेंट करते रहो जो भी मिस्टेक्स हैं. एंड आई थिंक दैट शुड बी द वे टू गो फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स. एब्सोल्युटली, ये बहुत सही चीज है. फोमो में बहुत पढ़ते हैं एस्पिरेंट्स. नए मटेरियल में नहीं जाना. यू हैव टू ट्रस्ट योर सोर्सेज स्पेशली इन द लास्ट डेज. थोड़ी बहुत इंटरव्यू की बात कर लेते हैं बिकॉज शी हैज स्कोर्ड 216 मार्क्स. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज ये वन ऑफ द हाईएस्ट है अक्रॉस यूपीएससी स्पेक्ट्रम्स. 216 इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात होती है. एंड कोमल हैज रिगरसली वर्कड फॉर दिस. मतलब every single day I have seen her practicing how to speak, how to articulate, how to perfect opinions, हर चीज को लेके. तो एक केबीसी फॉर्मूला बताया था कोमल ने हमारे इवेंट पर, जो हमने एक रैंकर्स फेलिसिटेशन इवेंट किया था. उसके अलावा कोमल, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम? बिगनर्स हैं वैसे तो, दे वुड नॉट नीड स्टेज पे, बट स्टिल ये बहुत मोटिवेशनल होता है इनके लिए, स्पेशली द इंटरव्यू पार्ट. राइट सर. आई थिंक नाउ दैट की जो फॉर्म फिलिंग होती है उसमें जो हमारा डैफ है वो इस तरीके से चेंज हो गया है कि जो इंटरव्यू में भरा जाता था पहले वो अभी भरवाने लग गए हैं. सो आई थिंक यूपीएससी ऑल्सो वांट्स अस टू फोकस ऑन आवर पर्सनैलिटी थ्रू आउट द ईयर and not just prepare for it after the mains. So first thing would be start building your personality. Have some hobbies, 1 or 2 hobbies. It's very natural कि इस preparation में time नहीं मिलता है. It's a very rigorous process. But still, you should make sure that you have certain hobby. नहीं है तो बना लो अभी और start working on it. सो उसके अलावा अपने डैफ के बारे में अभी से सोचना स्टार्ट कर दो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम उस टाइम पे गलत गाइडेंस की वजह से या बिकॉज वी हैव नॉट थॉट द प्रोसेस थ्रू तो हम कुछ भी भर देते हैं और बाद में वी में रिग्रेट. तो इस टाइम मैंने भी इस साल ऐसे एक टर्म भर दिया था एंड लेटर आई वाज रिग्रेटिंग दैट आई शुड हैव चेंज्ड इट. सो दैट शुड नॉट हैपन टू यू. प्रॉपर अपने डैफ को तैयार कर लो और करंट अफेयर्स पे एक ऊपर ऊपर से पढ़ने की जगह स्टार्ट टू फोकस ऑन एनालिसिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इटसेल्फ. क्योंकि क्या होता है ना, पीपल आर इन अ मिक्स अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या करेंगे इंटरव्यू के लिए, हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, वहां पे उनके नोट्स को हम अच्छे से रट लेंगे और वहां पे हम एक सोफिस्टिकेटेड सा आंसर बोल के आ जाएंगे एंड द बोर्ड विल बी वेरी इंप्रेस्ड. आई थिंक दैट डज नॉट हैपन. डेप्थ बहुत मैटर करती है. उनको समझ आ जाता है कि ये रट के आया है कि इसकी खुद की एनालिसिस है. सो आई थिंक फोकस ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन योर ओन ओपिनियंस मोर. तो वो अभी से अगर आप करना शुरू करेंगे आई थिंक इंटरव्यू वुड बी एन इजियर प्रोसेस फॉर यू. Wonderful. If you have to reattempt this examination again, what mistake would you avoid? सर आई थिंक इनिशियली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस मैंने बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ लिया था विच आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज और इट कॉस्ट मी, इट डिड नॉट कॉस्ट माई अटेम्प्ट बट डेफिनेटली मेरा जो स्कोर है वो अफेक्ट हुआ था. स्पेशली इन माई फर्स्ट प्रीलिम्स आई हैड जस्ट क्लियर्ड इट 1 mark above the cutoff. This time I am at 100+. So I think that is a major blunder that I made कि इधर उधर भागना it is very very disastrous. तो वो नहीं करना है. शुरू में थोड़ा सोच लो, टेक योर टाइम, उसके बाद सोर्सेस डिसाइड करो बट देन लेटर स्टिक टू देम.
सो आई थिंक दैट वुड बी वन थिंग. इसके अलावा मेंस में भी आई फोकस मोर ऑन रीडिंग रिविजन रिविजन, बट आई डिड नॉट फोकस अ लॉट ऑन फुल एंड टेस्ट. मैंने आंसर राइटिंग भी करी थी. आई फोकस ऑन एवरीडे आंसर राइटिंग. आई रोट अ लॉट ऑफ आंसर्स ऑल्सो. आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट. बट जो फुल एंड टेस्ट वाली प्रैक्टिस होती है दैट इज वेरी डिफरेंट. क्योंकि जब आप 5 आंसर डेली लिखोगे तो आपका माइंड ऑलरेडी इतना फ्रेश होता है, आप अच्छे आंसर से लिखोगे उस टाइम पे. बट वेन यू आर राइटिंग अ फुल एंड टेस्ट, तो शुरू के 5-10 आंसर्स लिखने के बाद आपका दिमाग थक जाता है. उसके बाद भी आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, एवरेज एंड अबव एवरेज. तो उसकी प्रैक्टिस करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द 2 मिस्टेक्स दैट आई वुड सजेस्ट यू शुड नॉट मेक. Right. Quickly, I'll take some questions. Or maybe if you have students, if you have questions, you can ask in the comment box. More about geography related current affairs for prelims. Geography environment के current affairs कैसे करने हैं for prelims, Komal? सर आई थिंक फॉर एवरी सब्जेक्ट सिमिलर तरीके से किया था मैंने. फर्स्ट आई वुड रीड द न्यूज़पेपर. वहां से क्योंकि रिपीट होती है न्यूज़ बहुत ज्यादा, तो दिमाग में बैठ जाता है वो. उसके बाद आप कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हैं, या फिर आप जो एंड में पीटी कंपाइलेशन आती है, ईयरली कंपाइलेशन, वो भी आप रेफर कर सकते हैं. ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में न्यूज़ क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है. सो स्पेशली इन ज्योग्राफी. एनवायरमेंट में तो फिर भी न्यूज़ मैटर कर जाती है इफ इट इज अ कॉप और एनीथिंग लाइक दैट. तो ज्योग्राफी में अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स अगर आपके बहुत स्ट्रांग है, सो आई थिंक इस तरीके से कवर हो जाते हैं करंट. वो आप लेक्चर्स भी देखते थे विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, या कि सिर्फ मटेरियल से हो जाता था? नहीं सर, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स एंड ग्रास्प्स थिंग्स बेटर इन एन ऑडियो विजुअल मोड. तो मैं ट्राई करती थी कि मैं लेक्चर्स देख लूं, एंड आई मोस्टली ट्राइड फॉर फ्री यूट्यूब लेक्चर्स. तो उस तरीके से आई यूज्ड टू कवर. उसके बाद मटेरियल मुझे बेटर अब्सॉर्ब होता था. दैट्स व्हाट आई फील. Current affairs, how do you analyze it? विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स. I hope because prelims से ज्यादा queries हैं अभी. ओके. डेफिनेटली करंट अफेयर्स सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत ज्यादा वास्ट है ये, तो सब कुछ हम पढ़ नहीं सकते हैं. बट इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनालिसिस होगी पीवाईक्यूज की. आपको देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर आप वो खुद से एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो अगेन टेक हेल्प ऑफ कोचिंग. फ्री मटेरियल अवेलेबल है कोचिंग की वेबसाइट्स पे, वेर इन दे हैव एनालाइज पीवाईक्यूज, और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ये स्टैटिक से आया है, कि करंट से आया है, या फिर ब्लेंड होके आया है. तो जब आप इस तरीके से पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि जो हम अभी करंट पढ़ रहे हैं इसमें से क्या चीज रेलेवेंट है और क्या चीज हमें छोड़ के जानी है. सो आई थिंक पीवाईक्यूज आर दी ओनली सोर्स टू एनालाइज करंट. For current affairs, monthly magazine or newspapers? न्यूज़पेपर्स तो नॉन नेगोशिएबल है. इट्स नॉट एन ईदर और सिचुएशन. मंथली को आप स्किप करके ईयरली देख सकते हैं, बट आई थिंक न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और ये भी करना पड़ेगा. Do you find relevance of foundation classes anymore? सर आई डिड नॉट अटेंड एनी फाउंडेशन कोर्स, तो आई डोंट नो हाउ द रेलेवेंट दे आर. मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है. अब relevant तो नहीं है. That's my honest opinion also. न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए थे? प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाए थे. मेंस के लिए कुछ बहुत अच्छी लाइंस आ जाती हैं, जैसे फॉर एस्से एथिक्स एग्जांपल्स मिल जाते हैं, या जीएस 1 2 3 के लिए कुछ वैल्यू एडिशन मिल जाता है, तो वो लिख लिया. अदरवाइज ऐसे न्यूज की स्पेसिफिक तो नहीं बनाए नोट्स. ठीक है. हाँ, I think more than enough. बाकी सब everything I've answered. Thank you so much, Komal, for taking out your time. It was lovely having you. And again, very proud. 216 is a great marks in the interview. आप IAS बनो इस साल and make the country proud. चलो, thank you so much. Thank you. Thank you.